Welcome students to our channel. Today I am going to explain task 1 in detail. So watch the video till then so that you can get maximum score in your writing module. Let's discuss the task 1. As I mentioned here, it includes 30% marks of your writing and it is quite easy than task 2 of writing. सो इट इज़ क्लियर दैट कि अगर आप राइटिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो टास्क 1 ईजी भी है एंड इट इंक्लूड 30% मार्क्स ऑफ योर राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. द फॉर्मेट इज़ we have to write an introduction part, we have to write overview, then body paragraph 1 and body paragraph 2. सो हमें 4 पैराग्राफ्स हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं इन द टास्क 1. सो द फर्स्ट विल बी योर इंट्रोडक्शन पार्ट एंड क्लियरली लिखा हुआ है पैराफ्रेज द क्वेश्चन. पैराफ्रेज मीन हमें स्टेटमेंट को एज इट इज़ नहीं लिखना है, वी हैव टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट. द सेकेंड पार्ट इज़ ओवरव्यू and I will discuss it in detail in the next slides. Next is BP1 and BP2, and here the most important thing is that data should be grouped into 2 body paragraph and no conclusion is needed. So जो data रहेगा वो 2 बड़ी पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए एंड कंक्लूजन की नीड नहीं है. जैसे कि हम टास्क 2 में पूरे बॉडी फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, तो लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं. सो टास्क 1 में हमें कंक्लूजन नहीं लिखना है एज वी हैव रिटन द ओवरव्यू. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ, और आपको टास्क 1 में 6 टाइप ऑफ ग्राफ मिलेंगे. द फर्स्ट इज लाइन ग्राफ, देन बार ग्राफ, प्रोसेस, पाई, मैप एंड टेबल. इन 6 टाइप ऑफ ग्राफ में से ही आपके पास एक टाइप ऑफ ग्राफ रहेगा जो आपको एग्जाम में लिखना है एंड यू विल गेट 20 minutes टू राइट इट. द नेक्स्ट इज today I am going to explain you in detail line graph. And in line graph or in any type of graph, the first thing जो हमें करनी है that is we have to analyze the subject. So I have circled the word subject, so I am going to explain it. सब्जेक्ट इज़ के ग्राफ किस चीज़ के बारे में है और ग्राफ में जो ये लाइनें इंक्रीज़ कर रही हैं या फिर डिक्रीज़ कर रही हैं, व्हाट इज़ दैट, वो किस चीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बोल रहे हैं. एज द स्टेटमेंट इज़ द ग्राफ बिलो शोज द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय 3 companies over a period of time. So clearly they have mentioned that के graph shows the amount of waste produced. So in this line graph our subject is amount of waste produced. So this is your first step in each and every graph जो आपको करना है. अगर आपको 6 टाइप ऑफ ग्राफ में से कोई भी एक टाइप ऑफ ग्राफ आता है तो आपको सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा दैट इज़ योर सब्जेक्ट. आपको एनालाइज करना है सब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर एग्जामिनर. जब वो आपकी राइटिंग चेक करेंगे सो दे विल चेक दैट कि आपने सब्जेक्ट करेक्ट उठाया है या नहीं उठाया है. एंड आई थिंक 50% मार्क्स इज़ ऑन योर सब्जेक्ट. आप अच्छे तरीके से अगर एनालाइज कर लेते हो कि व्हाट इज़ ग्राफ अबाउट, सो डेफिनेटली एग्जामिनर विल गिव यू गुड बैंड स्कोर इन योर राइटिंग. Next is introduction part, and I'm going to teach you how to write introduction part. So first of all we have to rephrase the statement. Rephrasing means कि हमें statement को as it is नहीं लिखना है, we have to change the wording of the statement. We can use synonym and we can change into active into passive and passive into active form. And I will make a detailed video regarding active and passive also. So the tip of introduction is you can use the word how much or how many. If the things are countable, you can use how many. If the things are uncountable, you can use how much. So here the subject was the amount produced by the 3 companies. So here हमें जो word use करना है that will be how much. Okay. Let's discuss the intro part, whole intro part. So इस statement को अगर हमें rephrase करके लिखना है this will be like that. So I have written that the line graph shows that how much waste has been produced by 3 companies in the span of 15 years. As you can see that it's totally changed from the statement. जो statement थी वो ये थी, the graph below shows the amount of waste produced by 3 companies over a period of 15 years. So जो मैंने wording change किया that was first thing was that I have added the type of graph. तो मैंने उनको clearly बताया it's a line graph.
and shows that I have included the word how much waste has been produced, and I have used the passive form and by the 3 companies in the span of 15 years. तो मैंने टाइम पीरियड को भी एक अलग वर्ड दिए. I have written the span of 15 years. So 3-4 वेरिएशन है जो मैंने स्टेटमेंट से अलग की हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द रीफ्रेजिंग के एज इट इज़ हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है. एक्टिव एंड पैसिव कैसे यूज़ करने हैं टास्क 1 पे, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इंट्रो पार्ट में हमें बेसिकली रीफ्रेजिंग करनी है, हमें स्टेटमेंट को एज इट इज़ नहीं लिखना है. जितने वर्ड आप रीफ्रेज कर सकते हो, यू हैव टू डू द रीफ्रेजिंग. आफ्टर इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज ओवरऑल. सो आई हैव शोन यू अ फॉर्मेट इन विच जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो इंट्रोडक्शन का था. आफ्टर दैट हमें ओवरऑल लिखना है. सो आफ्टर इंट्रोडक्शन हेयर इज़ द ओवरऑल. इन ओवरऑल हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन द ट्रेंड्स एज मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड द टिप इज़ दैट डोंट इंक्लूड द डेटा. हमें डेटा इंक्लूड नहीं करना है. डेटा इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टन, 6 टन, 9 और 12 टन्स, या फिर इन्होंने टन्स में एक्सप्लेन कर रखा है कि कितना जो वेस्ट था कंपनीज प्रोड्यूस कर रही थी. तो ये हमें ओवरऑल में डिस्क्राइब नहीं करना है. ये जो चीज़ें विद डेटा रहेंगी वो हमें BP1 और BP2 में इंक्लूड करना है. जो ओवरऑल रहेगा वो सिंपल हमें एक्सप्लेन करना है, ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करना है. एज आई हैव रिटन अ कंक्लूजन हेयर, overall or conclusion are the same thing. So overall is, in the starting, maximum waste was produced by company A, whereas company C produced minimum waste. As you can see in the graph, in the starting is 2000, और 2000 में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट था that is 12 टन, और वो था by the company A. So I have written that in the starting maximum waste was produced by company A. So I have used a connector whereas because I am comparing the two things, that is maximum and minimum. अगर दो अपोजिट चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, we can use whereas word, we can use however, we can use but. Okay, so in this 3 ton is the least amount, so that is produced by company C. तो हमने वही लिखा है whereas company C produced minimum waste. So after writing the introduction part and overview part, next we have to write the body paragraphs, and I have shown the structure again. सो हमें बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं. सो 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड होने चाहिए एज आई मैंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट के हमें जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनको कैसे इलेबोरेट करना है, और उनको इलेबोरेट करने से पहले हमें कुछ मेथड्स पता होना चाहिए कि किस लाइन को हमें किस मेथड में लिखना है. सो हेयर इट इज़, एंड यू कैन सी दैट देर आर वेरियस लाइन्स. सो अगर इंक्रीज़ लिखना है उसके लिए भी हमारे पास 2 से 3 मेथड हैं. एज यू कैन सी दैट के यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इंक्रीज़. हम इसको इंक्रीज़ भी लिख सकते हैं, एज वेल एज वी कैन राइट इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज़. ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन द सेंस कि अगर वो लगातार धीरे धीरे से इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स इट्स ग्रेजुअल इंक्रीज़. अगर वो एकदम से इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ रैपिड इंक्रीज़. सेम इज़ फॉर द डिक्रीज़. सो अगर लाइन नीचे की तरफ जा रही है वो डिक्रीज़. कॉन्टीन्यू डिक्रीज़ मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज़, एकदम से डिक्रीज़ हो रहा है. रैपिड डिक्रीज़, अगर वो लाइन बिल्कुल स्टेबल है, ना वो इंक्रीज़ हो रही है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, सो इट इज़ स्टेडीनेस और स्टेबल. अगर वो कॉन्टीन्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है दैट इज़ रैपिड चेंजेस, और यू कैन से इट फ्लक्चुएशन. The next method that can be used in your line graph is, we can describe the trends by using this method, and this is very effective method to get good score in task 1. As I have mentioned that subject, verb and adverb. So what is the subject? एज आई मैंशनड इन द स्टार्टिंग के सब्जेक्ट क्या रहेगा, जो भी वो डेटा में जिस चीज़ को भी वो शो कर रहे हैं दैट विल बी योर सब्जेक्ट. सो आई हैव यूज्ड सम एग्जाम्पल हेयर.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी लाइन ग्राफ आता है और वो अगर वो सेल्स के बारे में लिखा हुआ है, सो सेल इज़ आर सब्जेक्ट, अगर वो वर्ब मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, सो यहाँ पे जैसे लिखा ही हुआ है व्हाट हैपेंड मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम फेल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप्ड वर्ड भी डिक्रीज होने के लिए ही है, एज वेल एज वी कैन यूज़ द वर्ड डिक्रीज ऑल्सो। एडवर्ब इन द सेंस कि वो जो डिक्रीज हो रहा है वो कैसा हो रहा है। एज आई हैव शोन यू इन द लास्ट स्लाइड कि डिक्रीज भी कई टाइप से होता है, या तो वो एकदम से डिक्रीज हो रहा है या फिर वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है। सो एडवर्ब इज़ द टाइप ऑफ डिक्रीमेंट कि वो किस टाइप से डिक्रीज हो रहा है। अगर वो धीरे से डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स वी कैन से दैट स्लाइटली। सो सेल्स फेल स्लाइटली। जो ये सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब का फॉर्मेट रहेगा ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हो तो पूरा सेंटेंस गलत कंसीडर होगा। द सेकेंड इज देयर बी अ एडजेक्टिव एंड नाउन। सो कुछ ट्रेंड्स को आप सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब से एक्सप्लेन कर सकते हो एंड हाफ ऑफ द ट्रेंड्स यू कैन एक्सप्लेन बाय द देयर बी अ एडजेक्टिव एंड नाउन। एज यू कैन सी दैट we have adjective plus noun and here we have verb plus adverb। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हो तो वर्ब पहले लिखी जाती है, वर्ब प्लस एडवर्ब। अगर आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो एडजेक्टिव पहले लिखा जाएगा। सो एडवर्ब बाद में लिखी जाती है और एडजेक्टिव पहले लिखा जाता है। एंड वी हैव यूज्ड वर्ब विद द एडवर्ब एंड नाउन विद द एडजेक्टिव। सो द एग्जाम्पल्स आर देयर इज़ अ स्लाइट राइज इन सेल्स। सो सब्जेक्ट इसमें सबसे बाद में आ जाता है। देयर वॉज अ ग्रेजुअल फॉल इन द प्राइस ऑफ डैश। सो as you can see is was has been will be, it's according to the tense। जो भी टेंस में आपको लाइन ग्राफ मिल रहा है आपको उसी टेंस में यूज़ करना है। सो दीज आर द टू मेथड्स टू एक्सप्लेन द ट्रेंड्स। Here are some other methods to explain the trends and this method is by the prepositions। हम preposition से भी trends को explain कर सकते हैं। As you can see that in the first line graph, जो first line graph है, clearly I have mentioned that from to starting जो 10 point लिखा हुआ है, जहाँ पे 10 यूनिट लिखा हुआ है, मैंने clearly वहाँ पे from लिखा है और जहाँ तक वो decrease हो रहा है I have mentioned 2। So I have written that it decreased from 10 to 4। तो ये continue decrease हो रहा है, it's a decreasing line, so I have mentioned that it decreased from 10 to 4। or we can say that there was a drop of 6 unit। I have mentioned 6 unit because हमें अगर off word use करना है या फिर by word use करना है, so we have to do the subtraction from or 2 units। तो यहाँ पे जो from वाली unit थी that is 10 यूनिट और ये पहुंचा कहाँ तक है दैट इज़ 4 यूनिट। और अगर हम 10 में से 4 माइनस करते हैं दैट इज़ 6 यूनिट। सो आई हैव रिटन दैट देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 6 यूनिट और इट ड्रॉप्ड बाय 6 यूनिट। द नेक्स्ट थिंग वी कैन elaborate it by a decrease in the number of dash। So dash means we have to write the subject here, as we all know that today's subject is waste produced by 3 companies, or we can simply say that a decrease in the number of waste produced between dash and dash year। So अगर हमें years को elaborate करना है we can use between dash and डैश। बिटवीन और एंड हमेशा इकट्ठे आएंगे। आप ईयर्स को 2 मेथड्स में इलेबोरेट कर सकते हो, फ्रॉम और टू भी लिख सकते हो और बिटवीन एंड भी लिख सकते हो, बट हमेशा ही बिटवीन के साथ एंड लिखा जाएगा और फ्रॉम के साथ टू लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज लाइन को क्लियरली एक्सप्लेन हुआ है। फर्स्ट जो लाइन है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद वो एकदम से डिक्रीज़ हुई है, फिर इंक्रीज़ हुई है और उसके बाद स्टेबल हो चुकी है। इन लाइंस को फिर अगेन हम प्रपोजिशन के साथ लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन इज़ इट स्टार्टेड एट 4 यूनिट। एज यू कैन सी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो 4 यूनिट से स्टार्ट हुआ है, सो आई हैव यूज्ड एट हेयर। नेक्स्ट इज़ इट पीक डैट 10 यूनिट्स। सो हम पीक पॉइंट भी इलेबोरेट कर सकते हैं। पीक पॉइंट इज़ दैट जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा लाइन का दैट इज़ पीक पॉइंट, और जो सबसे कम पॉइंट रहता है लाइन का दैट इज़ लोएस्ट पॉइंट। dropped by 8 units to its lowest point at 2 units। so again I have used the word by। so अगर by यूज़ करना है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक ये पहुँचा है उनमें जो डिफरेंस था हमें वो मेंशन करना है। एज वी कैन क्लियरली सी कि ये 10 यूनिट से शुरू हुआ है और 2 यूनिट पे ख़त्म हुआ है। सो अगर हम by यूज़ कर रहे हैं तो 10 - 2 इट मीन्स 8। सो इट ड्रॉप्ड बाय 8 यूनिट्स टू इट्स लोएस्ट पॉइंट एट 2 यूनिट्स। द नेक्स्ट इज़ इट इंक्रीज्ड टू 6 यूनिट। तो ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगेन ये इंक्रीज़ हुआ है, और इंक्रीज़ कहाँ तक हुआ है ये, इट इंक्रीज टू द 6 यूनिट।
एंड नेक्स्ट इज रिमेन स्टेबल, ये स्टेबल रहा है, इट रिमेन स्टेबल बिटवीन 2010 एंड 2012. एज आई मैंशनड नाउ, अगर हम ईयर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी कैन यूज द टू फॉर्म्स, दैट इज बिटवीन एंड फ्रॉम टू. हम इसको इट ऐसे भी लिख सकते हैं, इट रिमेन स्टेबल बिटवीन 2010 एंड 2012, or we can write it as it remained stable from 2010 to 2012. The last is it finished at 6 unit in 2012. Hope it is clear to all. The next is overall sample of this today's line graph. Here it is. So हमें इसको कैसे elaborate करना है. The first is your intro part, second is your overall, and the next is the body paragraphs, the features you can say. Thanks to watch the video, students, and like the video and comment in the video if you have any problem regarding the task 1, as well as if you want any update regarding the IELTS modules, just comment me. I will make the video regarding that module. Thanks, students.